Hello student, Standard 11 English Medium, Chapter number 2, Animation Tool, Synfing. So in previous chapter, we discussed about multimedia and the basic building blocks of multimedia. To create a multimedia presentation using 3 building blocks, we need application programs known as multimedia authoring tools. These authoring tools provide the important framework to organize and edit the multimedia elements like graphics, sound, video and animation. तो अगर हमको क्या करना है, कोई मल्टीमीडिया का कोई बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ये जो भी एलिमेंट्स है उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो जनरली द ऑथरिंग टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स, आइकन एंड इवेंट बेस्ड टूल्स एंड टाइम बेस्ड टूल्स. Generally, the authoring tools are classified into card or page based tools, icon and event based tools and time based tools. So in card or page based authoring tools, the elements are organized as page of a book or pile of cards. The authoring tools links these pages into an organized sequence. This type of tool are useful when the different elements can be viewed individually like the pages of a book. Some examples of card based authoring tools are HyperCard and Multimedia Tool Book. In icon and event based authoring tools, the elements are organized as objects in a structural framework or process. Here you need to build the flowchart of the events or task and then add the elements as per the structure. Some examples of icon and event based authoring tools are Authorware and Icon Author. In time based authoring tools, the elements are organized along a timeline. They are useful when you want to give a message that has beginning and end. The elements are displayed as per the time or location of the event. Time based authoring tools are the most popular amongst all. Some example of time based authoring tools are Synfing, Pencil, Flash and Director. There are many multimedia tools available in the market. Some of these tools are proprietary while others are open source. Some of the open source animation tools easily available on internet are Pencil and Synfing. सो इंटरनेट पर बहुत सारे मल्टीमीडिया टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की है, उसमें पेंसिल एंड सिनफिंग की बात की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे पेंसिल. सो पेंसिल इज़ अ 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर दैट lets you create traditional hand-drawn animation using both bitmap and vector graphics. It can be freely downloaded from http www.pencilanimation.org. तो ये वेबसाइट पर से आप पेंसिल सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. इट इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस एक्स. तो डिफरेंट ऑफ जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स हो तो लिनक्स, विंडोज़ हो तो विंडोज़ एंड मैक ओएस हो तो मैक ओएस, ठीक है. नीचे आपको फिगर 2.1 दी गई है. सो इट शोज द यूजर इंटरफेस ऑफ पेंसिल सॉफ्टवेयर. द इंटरफेस लुक्स क्वाइट सिमिलर टू अदर एनिमेशन और ड्राइंग सॉफ्टवेयर. In pencil animation software, you can create good animation if you are good at freehand drawing instead of object drawing. मीन्स पेंसिल सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो, अगर आप हैंड ड्राइंग आपको अच्छी आती है, ठीक है, जैसे आप पेपर पे बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, तो वैसे ही पेंसिल सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर सकते हो, अच्छा सा ड्राइंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे आपको
पेंसिल सॉफ्टवेयर का क्या दिया गया है, डायलॉग बॉक्स दिया गया है। मीन्स जब आप पेंसिल जो भी सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके ओपन करो तो आपको वो ऐसा दिखाई देगा। देख लो, यहाँ पे ये टूल बॉक्स है, यहाँ पे ये कलर्स के लिए है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम सिनफिंग स्टूडियो। सिनफिंग स्टूडियो इज़ अ टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल that falls in the category of open source. It is available free of cost on the internet and can be downloaded from www.synfing.org। मीन्स ये जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पर से आप सिनफिंग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सिनफिंग स्टूडियो इज़ 2D vector animation software released in 2005 under the GNU GPL। जो सिनफिंग स्टूडियो है वो 2D वेक्टर एनिमेशन है और वो कब रिलीज़ हुआ था, 2005। किसके अंडर, GNU GPL मीन्स जनरल पब्लिक लाइसेंस। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस फिल्म क्वालिटी एनिमेशन विथ फ्यूअर people and resources. It is available on various operating system like Linux, Windows and Mac OS X। मीन्स ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, विंडोज़, मैक ओएस, ठीक है, तो वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो द फर्स्ट वर्जन ऑफ सिनफिंग वॉज 0.61.05 एंड न्यू वर्जन हैव बीन रेगुलरली लॉन्च विथ एडिशनल फीचर्स टिल डेट। मीन्स अभी आप कुछ भी देखते हो, ठीक, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो सारी एप्लीकेशन में क्या होता है, जब आपने डाउनलोड की होती है उसके 1 वीक बाद, 2 वीक बाद आप क्या करते हो, अपडेट करते हो, ठीक है। तो ये भी उसका जो है, जब रिलीज़ हुआ था तब 0.61.05 था और फिर उसके अंदर डिफरेंटली जो भी एडिशनल चेंजेस होते रहे तो उसका अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 0.63.05। Since it is not available as a standard package in Ubuntu Linux, we need to install it first. Once installed, it will be available under the graphics option of application menu। मीन्स अगर आपके कंप्यूटर के अंदर लिनक्स जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है सिनफिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर इंस्टॉल है तो आप क्या करोगे, ग्राफिक मेनू में जाने का है, लेकिन उसके पहले क्या करना है, एप्लीकेशन मेनू में जाना है और एप्लीकेशन मेनू में जाने के बाद ग्राफिक मेनू में जाना है और वहाँ से आपको क्या ओपन करना है, सिनफिंग। सो सिनफिंग स्टोर्स एनिमेशन इन XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल फॉर्मेट, ऑफन कंप्रेस यूजिंग कंप्रेशन सॉफ्टवेयर gzip which stands for GNU zip। These files use the file name extension .sif in uncompressed form or sifz in compressed form। मीन्स जब भी आप आपकी फ़ाइल जो भी उसको सेव करते हो तो आपको क्या नाम से सेव करना है, आपका जो भी आप नाम दो उसके पीछे ये एक्सटेंशन होना चाहिए, कौन सा है, .sifz। सो ये कंप्रेस होगा, ठीक है, आपकी फ़ाइल यहाँ पे क्या होगी, कंप्रेस में सेव होगी। सो कैसे स्टार्ट करना है वो हम देखेंगे अभी। सो गेटिंग स्टार्टेड, टू स्टार्ट सिनफिंग इन द मेनू बार क्लिक एप्लीकेशन, ग्राफिक एंड सिनफिंग, हियर इज द स्टेप। एप्लीकेशन मेनू में जाओ, उसके बाद ग्राफिक्स में जाओ और उसके बाद सिनफिंग को ओपन करो। So when you start Synfing Studio, you must have observed that it does not start in one window, but opens a number of individual windows on the desktop। मीन्स जब भी आप ये ओपन करोगे सिनफिंग स्टूडियो, सो आप ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पे एक विंडो नहीं होगी, वहाँ कई सारी विंडो होगी जो एक साथ ओपन होगी। So we can drag the window to change the size। If you want to reset the Synfing Studio window default window arrangement as shown in figure 2.2, then go to toolbox, file menu, panels and reset windows to original layout। मीन्स आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको अलग अलग पैनल्स दिखाई देती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ड्रैग करके चेंज कर सकते हो उसके साइज़ के हिसाब से।
और अगर आपको क्या करना है, वो जो भी सारा अरेंजमेंट है उसको रीसेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, टूल बॉक्स में जाओ, फाइल मेनू में जाओ, पैनल्स में जाओ और रीसेट विंडोज़ और रीसेट विंडोज़ पे क्या करो, क्लिक कर दो, तो सारी विंडोज़ आपकी क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। So let us first get familiar with the user interface of Synfing. In figure 2.2 you can see the Synfing Studio with the window layout. यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, कैनवास है, ये आपका टूल बॉक्स है और ये पैनल है। एसजीटी यहाँ पे नीचे भी क्या आती है, पैनल आती है। सो ये आप जब भी सिनफिंग ओपन करोगे तो ये आपकी क्या होगी, ये आपका कैनवास होगा और पूरी आपकी फाइल होगी। So as seen in the figure 2.2, components in the user interface are toolbox, canvas and panels. Let us discuss the role of each of them. So first of all हम बात करेंगे toolbox. So toolbox is the main window which contains system menu and tools to create and edit your artwork as shown in figure 2.3. Closing the toolbox exits the application. Even if you have several projects open, there will only be one toolbox for all. Using the toolbox, we can create a new file, open an existing file, save the file and set up properties. मीन्स अगर आप टूल बॉक्स जो है सिनफिंग में उसका यूज़ क्या कर सकते हो, कोई नई फाइल बना सकते हो, कोई पुरानी फाइल आपने सेव करके रखी है वो ओपन कर सकते हो, ठीक है। So the toolbox also contains the general tools like circle, rectangle, transform and others. Means जो toolbox है उसके अंदर नॉर्मली चीज़ है. So for creating and editing a object, means आपको कोई भी ऑब्जेक्ट एडिट करना है तो उसकी बात है. So the toolbox window is separated into three area of palettes. First of all, the upper palette contains buttons for standard file operations like create a new file, open a file, save all files, undo and redo, as well as access to be setting dialog and the help system. So in the middle palette we have the two like circle, rectangle, transform and other for creating, hand manipulating and object. मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल दौड़ेंगे, ठीक है, ऐसे कोई भी जो भी शेप है आप क्या कर सकते हो उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टूल बार के बारे में आगे।